system, which is not being considered at all. At all. We are not doing anything to create that jails as a correctional system, or we are not. स्विट्जरलैंड में एक दफा हमें लॉ सेक्रेटरी थे, ये हमारी जो साकिब निसार साहब इन दोनों लॉ सेक्रेटरी थे 97 में. So Swiss government invited us 4 people and I was part of that. So we went there and we saw that the terrorists are having a very separate, the high profile cases are having a separate jail. So it is not mixed up with the ordinary छोटा कोई मुर्गी चोरी कर ली किसी ने कोई चीज उठा ली और उसको आप जेल में डाल दो. हमारी जेल जो है वो क्राइम की यूनिवर्सिटीज हैं, क्राइम की लिटरली यूनिवर्सिटीज हैं. वहां से क्राइम निकलता है. आप जितने लोगों को जेल में डाल रहे हैं वो फर्दर बड़े क्रिमिनल बन के निकल रहे हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. दिस इज ऑल आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विच इज क्रिएटिंग ऑल दिस. और फिर आप ये देखिए कि क्लास सिस्टम जो हमारे मुल्क में है वो आपकी कोर्ट्स में भी है, वो जेल में भी है, वो जज के माइंड में भी है, वो पुलिस के माइंड में भी है. ये माइंड सेट है सारा. ये जो ट्राइबलिज्म फ्यूडलिज्म की आप बात करते हैं ना, ये सारा का सारा जो है ये क्लास सिस्टम है. और क्लास सिस्टम में गरीब की सुनवाई कहीं भी नहीं है. थैंक यू. And sir, मेरा आपसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसमें भी पूछना चाहेंगे, I would like to know, police is blamed. It's just an allegation that because of the poor investigation, prosecution does not have a sufficient material for a conviction of any certain accused person. Courts are blamed that our acquittal percentage is more than 90. Even in the anti-terrorism cases, we have less than 10% conviction rate. Sir, police is normally blamed for all these things. Having a person like you from the Department of Police, what would you like to have? Thank you very much for having me. I was little late because I was in a meeting, and I think you can hear me. Can you hear me? Can you hear me now? Better. So I'm sorry for having joined later. As to the question you have posed me, I would just to give you a premise that the criminal justice system is a triumvirate of it starts off with the legislature, they make laws, then you have, if a crime is committed, you have police to investigate, find evidence, and then bring it to the cognizance of the court. That brings us to the court system, and the courts presided by the judges. And then if we have a trial and somebody is convicted, then they are sent to jails for corrections. Even the undertrial prisoners, they are mostly transitioning from this courts to the prison to the courts. Yeah, but that is a minority. I'm talking about the whole system. I mean, systemic idea of things. And of course, you have the criminals, the lawbreakers, who when they break laws, and so it's about four elements, like the people, the agency police, courts, and the correction facility or the jails. We being in Pakistan, being having got independence from Great Britain, we are adherents of common law. So the criminal justice system, the edifice that is in place, is mostly borrowing things from British court system, which is a highly intricate system. I think I'm not a jurist or a legislator, so I can't really put myself in that pedestal and say something which could possibly diagnose something or say with the level of authenticity that these are the things that ail our criminal justice system, with a focus on policing or with a focus on the lack of convictions. As you pointed out, one of the ailments that
that it is set there. So, coming back to the premise that the system is extremely delicate one, and to run it smoothly, you need to have many preconditions. For example, it has to be very much of a coherent system, right? Like the interactions or the coordination between these agencies, like police, courts, and the jails. It should be very smooth, and they should be dovetailed with each other. If we talk about the current state of criminal justice system, it is very, what I see, it is very fractured one. So, as students of law, you must investigate, you must look into the loopholes that the system actually has got. Some of them are defective from the early beginning. Like you say that they are the things which are actually inborn in the system. As I said earlier, that the system has been transplanted all this land from the British rulers. So it is not a locally manufactured system with local, aspirations or developed in sync with the needs of the people. I just give you a simple example about our laws, and I think he would be correcting me if I go wrong somewhere. That, for example, false depositions, false witnesses. Now, police comes across so many cases where people they depose false witnesses, and even if they are convicted for the same, in one case, if somebody comes to police station and gives a false evidence, he or she, if even it is proved that they are false witnesses, next time they can again come back and register another case or pose as a witness. In other countries, which are highly developed countries, this does not happen. So one of the things like an evidence which was supposed to be a touchstone for any case is actually compromised really in the beginning. So I'm just pointing out one thing, that this thing which has a far-reaching influence for the entirety of the case, it actually affects it very badly. Coming back to other things, structural things, the coordination between different agencies, it is very much. I was just running a meeting at my IG's office, and police department, for example, somebody is brought to a police station and he is, for example, caught in a simple robbery case. Now there are systems that it's fingerprinting or like it's CRO, crime recording. Even still now we are not able to maintain due to various reasons. The CRO, the criminal record office, cannot maintain its information like its the suspect's parentage, NIC, fingerprints, and other details. And this data does not correlate with the data at the jails. You will be shocked to know that the data is there is a mismatch between the data. Another thing, for example, we have another system for fingerprint identification. Now, whenever crime scene units, for example, police, they get evidence for fingerprints. 99% times the data is not useful because NADA would not respond to you, because they have this fear that if they say it's a positive match, they would be brought before the court of law as a witness. Like in medical legal. Yes, they would like to avoid that responsibility. Now legislators can
come up with some modification in the procedures that their witness deposition is waived off. So there is a need for reform in this area as well. Or they can give evidence from their own office. Yeah. So, Coming to the basics, police job is to gather evidence. I mean, actually, we are had many planes. It's a very huge topic, and I think each aspect needs lots of discussion and lots of arguments over it. But coming back to your question, that how police can improve convictions, or what is the reason for the lack of convictions? And as I said earlier, that the conviction is basically a product of the entirety of efforts taken by people who are actually deposing against some criminal, then the police, which is actually mandated or paid, as you said it, paid to collect evidence in favor of the complainant and against the criminal or the aggressor. And then the court system, that is the trial court, which is supposed to run the trial at a finite given time and then sentence on the completion. Now every stage it has its own pitfalls, and as a police officer, I can only tell you that police does have many issues, like Raza rightly pointed out, and there are issues related to capacity building, training, then financing, of course. Then let me take it upfront that there is issue of corruption amongst the ranks also, because the system is, it's a system in which one party has to go against the other one, so you have to take sides. So when this is a crime against state, for example, then somebody else who is actually representing the state, it is mostly compromised. So I think that conviction can be improved by better collection of evidence and better coordination between courts and police agencies. right. Unless you are on one page, I mean, this has to be ensured. It should not be a blame game or a zero-sum game, because I say something and the judicial authorities, they say other things. Because as a supervisor, I have been supervising work of my investigators, and whenever I present myself before honorable court in the chamber or otherwise, there are always complaints or there are always things that are not being addressed. But when I come across my investigators, they have their own set of complaints or their concerns. So what I think that what is a good approach is to be holistic. Instead of indulging in blame games, we should sit together and try to solve things which can improve our convictions. I want to add something. Yes, please. Yes. Please. मैं मुख्तलिफ पुलिस अकेडमीज के अंदर जो है लेक्चर्स देती रहती हूँ, और उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पुलिस के टेबल पर चीज़ होती है. Ladies and gentlemen at the back, can you hear her? No. Okay, can we have the mic working? Yes, ma'am. सबसे जो अहम जो पुलिस टेबल के ऊपर जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, और मैं अक्सर अपने जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, जिनको हम लेक्चर देते हैं आपकी पुलिस एकेडमी में, वहाँ हम एक बात बहुत अहम बताते हैं. हम ये कहते हैं कि वो जो चालान होता है जो आप सबमिट करने जा रहे होते हैं, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, वो शायद आपको पता हो या ना पता हो उसकी इम्पोर्टेंस, वो बेसिकली फर्स्ट जजमेंट होती है किसी भी क्राइम की. तो अगर हमारे पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको प्रॉपर तरीके से, उसके 6 कॉलम्स होते हैं चालान के, अगर वो 6 कॉलम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उसको अगर डिजाइन किया जाए, उनको अगर बताया जाए कि वो क्वेश्चंस ऑफ लॉ और क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट्स जो कि वो जो उसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे होते हैं कि ये फलाना सेक्शन के तहत
ये एफआईआर काटी जा रही है, और आखिर के अंदर वो एक पूरा जो है कंक्लूडिंग पैरा देते हैं। वो कंक्लूडिंग पैरा जो है वो लीड करता है टूवर्ड्स द जजमेंट विच मे बी आफ्टर ट्रायल पास बाय द जज। तो मैं अपने तमाम पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ ये जो कहती हूँ कि आप जो है बेसिकली फर्स्ट जजमेंट राइटर हैं थ्रू चालान किसी भी क्राइम के। तो प्लीज जब भी आप चालान भेजें, जब भी आप चालान सबमिट करें, तो उस चालान की जो 6 कॉलम्स होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझें, और जब आप उसको फाइनलाइज कर रहे हो तो आपकी जो थ्योरी हो, ये रिकंस्ट्रक्शन क्राइम कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं, जो लास्ट कंक्लूडिंग पैरा होते हैं उसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम। अगर उसको सही तरह से जो है डिजाइन करें और जो है स्टेप बाय स्टेप उसको जो है बताएं, तो मैं ये नहीं समझती कि प्रोसिक्यूशन के बाद डिफेंस काउंसिल जो है उस क्राइम को किसी भी तरह से जो है मैस कर सकती है, या उस इंसिडेंट को जो है किसी भी तरह से तोड़ सकती है। तो पुलिस ऑफिसर्स जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं जब वो चालान सबमिट करते हैं। थैंक यू। सर, वो डॉक्टर मकाती ने एक इशू उठाया था कि हम अपनी नई टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं यूज मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि now we have already spoke about all the depressing things. Now let's talk about the good things and the future and the way forward, and then I'll be taking your questions. Yes sir. मैं उसी अच्छी बातें करते हैं सर। वो ठीक है, वो इसके बगैर तो मतलब पहले तो सारी बातें वही है ना जो हकीकत बता दें। बेसिकली हमारे मुल्क में जो है ना उसका जो फ्लो है वो बहुत स्लो है। हमारे पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको भी आज की गिवन सर्कमस्टांसेस में वो सारी जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अलावा उनको जो फोरेंसिक साइंस है या जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, मुझे याद है मैं 1991 में जब यूएस का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखने गया तो उस वक्त वहां पे वाइट कॉलर क्राइम पे उनके बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे, दे वर डीलिंग विद दैट। एंड व्हेन आई वाज विजिटिंग टेम्पा फ्लोरिडा, तो हमारा जो होस्ट था वो ही वाज अ प्रोसिक्यूटर टू बीसीसीआई बैंक। बीसीसीआई बैंक एक हुआ करता था जो पाकिस्तानी बैंक था, उसको यूएस ने बिल्कुल खत्म कर दिया, उसके पॉलिटिकल रीजंस बहुत थे। तो वो मुझे लेकर गए, तो वो कोई इस तरह के मेरा ख्याल है 20 रूम्स होंगे जिनमें टनों के हिसाब से डॉक्यूमेंट थे, जो उन्होंने कहा ये अटैचमेंट्स हैं इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के। तो हमारे यहाँ तो अभी व्हाइट कॉलर क्राइम शुरू ही नहीं हुआ। व्हाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन आई डोंट नो कि असद साहब बताएंगे, बिकॉज ही वाज वेरी फेयर to talk about it. Then he was accepting whatever the flaws, and he was also saying that we need to have a bridging, and he accept that there is a capacity problem which we have to deal with. तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में बहुत लेट शुरू हुआ है कि अब हमें अगर हम अप्लाई कर दें कि मैं कराची में हूं और मैं यहाँ से आर्ग्यू करूंगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट वहां बैठी है, वो यहाँ हमें वीडियो लिंक पे ले लेते हैं। अभी हम सिर्फ वीडियो लिंक पे आए, जी हाँ, तो वीडियो लिंक पे भी आए। अभी सिंध हाई कोर्ट ने कल पहला केस किया, सिंध हाई कोर्ट ने कल पहला केस किया है फैसल कमाल आलम ने, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वो उनको भी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं और वो पाकिस्तान बार काउंसिल में जब थे तो हमने वहां भी उनकी वेबसाइट बनाना ये करना, तो वो ही इज वेरी गुड इनटू, सो आई थिंक द टास्क वाज गिवन टू द राइट जज, सो ही डिड। वहां से थर की कोई 2 केसेस थे कोर्ट स्टाफ के, उन्होंने वहीं उनको वीडियो लिंक पे लेके उनका केस डिसाइड किया। तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को हमने यूज ही नहीं किया, हम उसको करना भी नहीं चाह रहे, और यही वजह है कि जो टेररिस्ट हैं या जो क्रिमिनल्स हैं या कार्टल्स हैं, दे आर यूजिंग दिस, एंड इवन द पुलिस फोर्स इज नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ जो गैजेट्स हैं जो इनके पास नहीं है, वो उनके पास है। जो उनके पास वेपन्स हैं इनके पास नहीं है, उनके पास इनसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, ये असद साहब बताएंगे। तो जब आपकी कैपेसिटी का इश्यू ये हो और आप उसको समझ भी ना रहे हो, तो फिर कैसे आप ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि जितने दिन यहाँ पे मैच होता है या जितने दिन जो है वो ये अभी आर्म फोर्सेस की जो एक्सपो लगी हुई थी, सारी पुलिस वहां, कोई थाना सारे थाने खाली थे। आप केस करने जाएं, बोले जी खत्म होगा तो करेंगे, आशूरा पे सर मोबाइल, ठीक है ना, आशूरा पे जो है ऐसे ही हो जाता है। जो बड़े इवेंट्स हैं सारी पुलिस वहां चली जाती है,
Decentralization we need desperately, that the police should not be transferred from one place to another place unless there is some, वो भी नीड भी नहीं होनी चाहिए, वो स्पेशल पुलिस होनी चाहिए हर जगह की। गार्डन की पुलिस अलग हो और आपके इंस्टीट्यूशन को डील करने वाली पुलिस अलग हो। आपके अपने इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में जो जिस तरह के हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, उसके लिए आई suggested once in Karachi University that we must have some helpline in every university. मैं डॉक्टर साहब को कहूंगा कि आप भी ऐसा कोई सिस्टम अडॉप्ट करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जो उसको रन करें, कॉन्फिडेंशियल रखें, जिसका हम ज्यादा डर होता है इंस्टीट्यूशन को कि हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो एक नई बिगिनिंग करने के लिए कि स्टूडेंट्स कैन कम अप, और फिर उसके साथ ही उसको काउंसलिंग के साथ अटैच करें। हो सकता है कि वो दोनों साइड्स को काउंसिल करके आप जो है ना नॉर्मल कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू, कि वो बड़े क्राइम की तरफ ना जाए, क्योंकि ये यंग लोग होते हैं, फिर वो दुश्मनियों में बाहर सारी चीजें जो होती हैं, जो आपको पता चलता है, वो बड़ी एग्रीवेट हो जाती है, तो उसको भी रोक सकते हैं। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट, एंड यू शुड हैव अ सेपरेट सेशन जहां पे आप उनके एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उनसे बात करें कि नई टेक्नोलॉजीज को कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, ताकि पुलिस भी इक्विप हो। जो हमारे अभी जितने जज बैठे हैं वो अभी वीडियो लिंक को डील नहीं कर सकते, उनको तो पता नहीं कितना स्टाफ चाहिए होगा, उनको इतना बड़ा स्टाफ चाहिए होगा कि आप सोच ही नहीं सकते। और हमारे यहाँ तो देखें, मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में मैंने जाके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑब्जर्व किया है। आई बीन टू ऑलमोस्ट 71 कंट्रीज to see what is happening and the conferences, and we meet judges, lawyers, visiting all those places. तो वहां के उन्होंने अपनी ना नेशन बिल्डिंग की है, bringing a good police, good justice system is a nation building. It is not just a patchwork which we see that कि भाई हमने कोई फेवर कर दिया पुलिस को, अगर हमने गाड़ियां दे दी हैं या उनको कोई हमने ऐसा काम दे दिया, या जो है ना, हम एक जमाने में जब मैंने प्रोफेशन शुरू किया था तो हम लोग बहुत जजों के लिए बातें करते थे। हम कहते थे जजों की तनख्वाहें थोड़ी हैं, उनके रूल्स बहुत छोटे हैं, उनको गाड़ियां नहीं है, उनके पास फोन नहीं है। What happened? Now I'm saying the right thing, that हमने वो सारी स्ट्रगल की। जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब के जमाने में ये चीजें रेज हुई, वो नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जुडिशरी की। उन्होंने उनको एलिवेट किया, और उसके बाद क्या हुआ? करप्शन खत्म नहीं हुआ, बढ़ गया। करप्शन इज गॉन वेरी हाई, एंड देयर इज नो there is a mechanism, but nobody bother to monitor their judgments, their orders, their way of whatever they are doing. ये सारा जब तक आप करेंगे नहीं, हमारे जो ईमानदार लोग हैं वो भी मर जाते हैं। जुडिशरी में ऐसा नहीं है कि लोग अब भी मैं देखता हूं कई ऐसे जजेस हैं। सेशन उस दिन मैं अभी अपने इलेक्शन कैंपेन में था, तो बाहर पार्किंग लॉट के बाहर खड़ा हुआ था, तो एक बंदा मुझे आके मिला, उसने हाथ मिलाया, क्योंकि मैं आजकल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में कम अपीयरेंस होती है, तो उन्होंने आके मुझे मिला कि मैं एडिशनल सेशन जज फलाना हूँ। इट वाज वेरी सिंपल, लाइक हमारे बसों में आ रहे होते हैं एडिशनल सेशन जजेस, और कुछ लोग हैं जो उनका आप देखें स्टाइल क्या होगा। तो बात यह है कि हमें रोल मॉडल्स की जरूरत है। वी हैव टू शो रोल मॉडल्स, वी हैव टू ब्रिंग रोल मॉडल्स दैट व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ, एंड वी हैव स्टिल गुड पीपल, गुड पुलिस ऑफिसर्स शुड बी ब्रॉट एज अ रोल मॉडल, ताकि बाकी लोगों को हम सिखा सकें। ऐसा नहीं कि सारी चीजें खराब है। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीथिंग इज बैड, बट व्हाट वी सी apparently the picture is very bleak. It is not improving. Even jail system, police system, जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है, अब ये रोज ऐसा हो गया है कि असद साहब को भी समझ नहीं आ रही है कि क्या है। रोजाना कोर्ट में इनको सुननी पड़ती होंगी कि आपके ऑफिसर ने ये किया, आपके ऑफिसर। अब जब वो जाके, जैसे सही बता रहे थे, जब ऑफिसर के पास जाएंगे, अब एक अगर क्रिमिनल को किसी को पकड़ना है पंजाब में पकड़ना है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दरखास्त देनी है होम डिपार्टमेंट को कि मुझे ट्रांजिट रिमांड भी चाहिए और मुझे पैसे भी चाहिए कि मैं जाऊं। वहां से पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो क्या करेगा? वो विक्टिम को कहेगा कि पैसे निकालो, गाड़ी करो अरेंज। अब वो पहले ही इतने गरीब हो, या रेप विक्टिम है, या वो अपने अक्यूज को पकड़ना चाहते हैं, तो पहले ही लुटे पुटे होते हैं, तो उनसे आप पैसे निकालो। वो फिर डायरेक्ट एलिगेशन है,
आप कहाँ जाएंगे, कौन कौन सी चीजों को आप देखेंगे? सो वी नीड टू हैव अ सिस्टम. Right. It's very important. Thank you, sir. Now we'll take question and answer. आपने जो पिक्चर पेंट की है या जो बताया है, उसके बाद से मुझे महसूस होता है कि हम 138 के तो हम आखिरी नंबर पे क्यों नहीं है। प्रॉब्लम जिन्होंने ये रैंकिंग दी है उसके बाद आगे रिवेल्यूट करना पड़ेगा। ये भी जब आखिरी नंबर पे आ जाए जस्टिस का अच्छा जो पहले से शुरू बात की कि फॉरेंसिक सिस्टम आपने खुद भी लिखी है, फॉरेंसिक का मतलब ये साइंटिफिक एविडेंस। जी जी मैं देखता हूँ कि 70s और 80s में 92% कन्विक्शन रेट था और आज भी 2%। मैंने अखबार में पढ़ा था, जी जी आज मेरी रॉन्ग परसेंटेज पर रिटन लाइक है ये अर्ली 70s 80s में 92% कन्विक्शन रेट था और अब ये घट के सिर्फ 2% रह गए। इसका मतलब है कि ये कुछ फॉरेंसिक है, जो साइंटिफिक तरीके जो आगे हैं दुनिया में, तो उसका डेफिनेटली कन्विक्शन रेट बढ़ा होगा। मतलब पाकिस्तान में कम हुआ एंड लाइक यू सेड कि ये फॉरेंसिक रूल हैं और उसकी कमिटी सिचुएशन है और टेक्निकल यू नो सब बड़े होते हैं, तो व्हिच मींस कि वी आर प्रोवाइडिंग रूम टू द कल्प्रिट्स कि वो किसी तरह से बच जाए। यस ठीक है ना? राइट अब मैं आपको बताऊं उस वक्त इससे और आगे की दुनिया में तरक्की हुई है, लेकिन 5 साल 10 साल में यहाँ पर जो साइड इफेक्ट आया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस मैं आपको ये स्टडी है नेटवर्क गिवन है कैलिफोर्निया की कोर्ट में, उसको यूज किया गया है 2000 का नहीं था 2000 को एडवांस में, तो वहाँ पर एक कोर्ट के पूरी ट्रायल हुआ और उसका पैसा 18 महीने में 1.5 साल में पैसा हुआ। उसके बाद उन्होंने चेक किया कि हमारा जो एआई सिस्टम है वो कितना मतलब वर्केबल है, तो उन्होंने वही केस एआई सिस्टम को दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और उसने 18 घंटे में फैसला किया और वो फैसला और जो एक्चुअल फैसला था उसमें 93% वैलिडिटी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये 2020 में कैलिफोर्निया की रिपोर्ट में आया गया था। तो आप देखिए दुनिया किस तरह जा रही है। आपने जिस बात की कि वो ऑनलाइन पे जगह को जाना भी पॉसिबल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि एटीएम सिस्टम है, आपने जो कैमरे लगाए हैं क्यों लगाए हैं? आपने तो इसलिए लगाए हैं कि बस लोगों को तसल्ली है, आप जिसको मानते नहीं। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मानते हैं, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, कैमरा आ गया, कैमरा आ गया, आर्टिकल 164 है हमारा आ गया, कानून शहादत के अंदर, इसके अंदर ये एडमिसिबल है, अब एडमिसिबल हो गया। मैं सबको मतलब मैं आपको बस क्या बताएंगे आपको इसके अंदर सर कानून। बड़ी इम्पोर्टेंट है वो आप लोग कर जी 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 मैंने एक आर्टिकल लिखा था कानून का फिर इसकी कॉपी मैंने गवर्नमेंट से उस वक्त 2007 का गवर्नमेंट जी जी मैंने अपने हाथ से उसको दिया था सर। एक आर्टिकल तो कम से कम है, वो आर्टिकल क्या था, मैंने कहा सिर्फ टॉय गन्स को जो है ना आप बैन करें। हाँ, दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों में आप टॉय गन्स पे जाए, बड़े बड़े से आप जाए, आपने जो विजिट किया 70% किया है, किसी भी गिरोह की दुकान में आपको टॉय गन्स नहीं मिलेगी बात। यहाँ पे वो सबसे बड़ा फेवरेट जो है ना, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। और वो जो पूरे खेलते रहते हैं, सो बच्चों खेलते हैं तो 2-4 तो ऐसे होंगे जो बड़े होते हैं, एक्चुअल क्या बात लेकिन आज जो और हमारा काम है बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। तो वही गलती को स्टार्ट है। मैं आपको तो कहता हूँ आपकी रसाई तक है, आप एजेंसियाँ होते जो वीआईपी जो भी आते हैं, आपके कैमरे में तरह के टॉयलेट खत्म कर देते हैं। 80-90% जो मनी होती है वो प्लास्टिक के अंदर होती है, सामने वाले को पता नहीं होता कि रियल में प्लास्टिक के वो क्या मारा जाता है। जो मतलब मेरे साथ जो प्लास्टिक से लेकिन मेरे लिए हाँ, सही है, इट्स लुक लाइक अ रियल वन। सही है। सबसे पहले मैं जवाब भी पहले एसएसपी साहब से ले लेता हूँ सर, कि बाकी सर हकीकत है कि कभी कभार पुलिस की गन जैम हो जाती है, उसको अनलॉक करने में टाइम लगता है, अगला बंदा कार्रवाई करके चला जाता है, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? पहले सर आप जवाब दे दीजिए, फिर देते हैं, लेकिन उससे पहले सर मैं एक चीज पॉइंट आउट कर दूं सर आपकी इजाजत से। जैसे अवान साहब ने बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने ये रिसेंटली इनिशिएटिव लिया है हमारी कोर्ट का, हमें बीइंग अ मैजिस्ट्रेट हमें ये सर्कुलेट किया गया है
कि आपको भी अगर किसी केस में बुलाया जाए फॉर एविडेंस, वो भी आपने वीडियो लिंक के थ्रू ही आपने ऑनलाइन जाना है। दूसरी बात मैंने अपनी कोर्ट में ये किया था कि एक खुला का केस था और उसमें अपना भी करवाएं इन्वेस्टिगेशन जो सीरियस केस वो बंदा कम से कम आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मैंने उनको ऑनलाइन दफ्तर में दिया बैठ कर तो वी आर ये यूजिंग ऑर्डर करवाएं। टेक्नोलॉजीज, वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू दैट towards the future of the जी साहब चले जाइए वरना आपके साथ मिलकर we have इसको got a करवा lot of laws. राणा साहब, टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं हमें तो नुकसान हो रहा है। जैसे फॉरेंसिक के केस में लोग मिसयूज करते हैं और उसमें लकूना ढूंढते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। Sir, वो मुझे करने का डर है। जब एआई सिस्टम आएगा तो हम उसका एल्गोरिथम भी चेंज कर देंगे। तो सर आप ये सोचें कि जो वकील है, मैडम वकील है और अगर मैडम के पास किसी एक्यूज का केस आएगा तो मैडम अपनी सारी एआई जो है उसको बचाने पे लगाएंगी, यही फॉरेंसिक जो है उसको बचाने पे लगाएंगी। नहीं सर, नहीं, आई एम सॉरी। सबसे पहले मेरे पे सो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पहले ये देखूं कि वो केस जो है किस नौयत का है। अगर वो वाकई विक्टिम है तो देन आई प्रोसीड। अगर वो पर्टिकुलरली एक्यूज है, उसने किया, मुझे कह रहा है कि मैंने किया, तो मैं आप यकीन कीजिए मैं 100 and 200% रिफ्यूज करके वापस कर देती हूँ केस को। और दूसरी एक बात जो कि अभी क्राइम के हवाले से या क्राइम के बारे में कही गई कि उसका क्राइम रेट बढ़ रहा है, उसकी एक वजह और भी है। आई एम सॉरी टू से सर कि मैं जजेस के मुतालिक बता रही हूँ, क्योंकि मेरे काफी सारे स्टूडेंट जो है वो जजेस भी हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और एडीजेस और मजिस्ट्रेट जो मेरे अंडर पीएचडी कर रहे हैं। मैंने उनसे कई मरतबा ये बात पूछने की कोशिश की कि आप मुझे ये बताइए कि आप जो है कोई एवोल्यूशनरी चेंजेस भी लाते हैं अपने जजमेंट के अंदर, या सिर्फ ये कह देते हैं कि फला साइटेशन के अंदर फला पीएलडी एससीएमआर और एससी के अंदर ये कहा गया इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। अपनी ओन ओपिनियन क्रिएट करते हैं आप यकीन करें 90% मेरे स्टूडेंट्स ने कहा सॉरी मैडम हमारे पास बाइंडिंग फैक्ट्स हैं। आर्टिकल 89 जो आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन जो है हम उसको फॉलो अप करें। लेकिन मैंने जो अपना थीसिस किया पीएचडी का, उसके अंदर मेरा बाकायदा एक चैप्टर है हाउ टू डिनाई, हाउ टू डेविएट योर ओन ओपिनियन, क्या आपके परमिसेबल है या नहीं है। तो मैंने उसमें बाकायदा डिस्कशन की कि हाँ जी परमिसेबल है। अगर एक जज आज ये कहता है कि ये नहीं है तो फिर वो ये कह सकता है कि ये है, क्योंकि एवोल्यूशनरी चेंजेस आता है। हमारे साथ दिल्ली में यह है पाकिस्तान की जुडिशरी, पूरी पाकिस्तान की जुडिशरी की बात कर रही हूँ और रिस्पॉन्सिबल मैनर के अंदर मैं ये कह रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, एवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं आए पाकिस्तान के अंदर जितना कि इंडिया में आ गए। मैं बड़ी जो है अफसोस के साथ ये कहती हूँ, उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर हर साल पूरी उनकी जुडिशल कॉन्फ्रेंस होती है, तमाम सूबों के जो केसेस होते हैं, टिपिकल केसेस होते हैं, वो रखे जाते हैं, तमाम हाई कोर्ट के जजेस बुलाए जाते हैं उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वहाँ पूरा का पूरा डेटा लिया जाता है और उसके अंदर एवोल्यूशनरी चेंजेस लाने के बाद बाकायदा उनके लेजिस्लेशन के अंदर अमेंडमेंट्स होती हैं। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जाता, कोई सिस्टम नहीं लिया जाता। सुप्रीम जुडिशरी की जुडिशल कॉन्फ्रेंस तो कराती है, लेकिन कॉन्फ्रेंस कराने के बाद वो जो सजेशंस होती हैं वो उनके एक मैगजीन की सूरत में डंप हो जाती हैं और वो आगे टेबल नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ हमारी जुडिशल नेशनल जो थी जुडिशल नेशनल एक हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर पॉलिसी थी जुडिशल नेशनल पॉलिसी, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया था कि फैमिली कोर्ट के अंदर 6 महीने का, रेंट केस के अंदर 6 महीने का, दिस इज वी आर गोइंग टू फॉलो। अदरवाइज उसके अंदर समझे 100 ऑफ सजेशन थी इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, सिविल को और बहुत सारे जो स्पेशल लॉज उनको जो है लेजिस्लेट करने के, उनको सही करने के लिए आप जो बातें कर रहे हैं सर, आप यकीन करें ये सारी बातें कई मरतबा बड़े हाई लेवल्स के ऊपर टेबल हुई है, डिस्कशन हुआ है, वो आज मौजूद ही है उन तमाम सजेशंस के अंदर, लेकिन वो सजेशन जो है लेजिस्लेट नहीं होते, टेबल नहीं होते हैं असेंबलीज के अंदर, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो लॉज के अंदर जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, जिसकी आमतौर पर हम एग्री डायरेक्टली हो जाते हैं, वो नहीं हो पाती। मैं ये समझती हूँ कि सुप्रीम जुडिशरी को हमारे सिविल कोर्ट में भी ये है कि आप जो है कोई स्टेप ले सकते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में भी है और इसमें भी है हमारे यहाँ सीआरपीसी में
क्या आप जो है अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहें तो जरूरी नहीं कि उसको आप टेबल करें उसके ऊपर असेंबली में, वो खुद भी सो मोटो करके उसके अंदर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जो है लेजिस्लेशन के हवाले से अभी तक इतना ज्यादा नहीं जितना कि हमारे जो नेबर्स कंट्रीज के अंदर वो है। थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ, मैडम की बात सही है कि नॉलेज है ना वैसे का है, तो इन्फॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। बाकी जैसे बात करते हैं कि जैसे लोकल पुलिस के पास में है ना, बेसिकली लोकल लॉ है, मेरा चाहे है लोकल पुलिस की लोकल लॉ का है। और मैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि कंट्रीज अब जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका इज अ ग्रेट नेशन, और उसकी ग्रेटनेस की वजह ये भी है कि इन्होंने अपने जो लोकल एरियाज हैं उसमें लोकल पुलिसिंग सिस्टम है उनके, तो लोकल लॉज करते हैं। जैसे मैं सिराक्यूज में पढ़ता था, तो सिराक्यूज के अंदर एक तो अमेरिकन लॉ काउंटीज में था, तो कुछ काउंटीज ऐसी थी जहाँ पर उनका 18th सेंचुरी का लॉ जो था वो चल रहा था वहाँ पे अभी तक। तो अब जैसे मैं भी अनरियलिस्टिक के 5 मिलियन मांग गया, तो वजह ऐसी है कि वो ट्राइबल एरिया है, जैसे राजनपुर है, कश्मीर है, मैं खुद रहा हूँ वहाँ पे, ट्राइबल एरिया है हमारे, बलोचिस्तान के एरिया है। अब वहाँ पर एट वन स्टेज में पहले बताया आपको कि बेसिकली सोशल, अगर हम बड़ी बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद लोगों ने बनाया एक जुडिशियल सिस्टम बनाया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया, उसपे कुछ चीज़ों को उन्होंने एग्री अपॉन किया कि ये 4-5 एजेंसियाँ होंगी जो कि एक्टर्स होंगे, और उसका जो टच स्टोन होगा किसी को भी क्राइम एंड पनिशमेंट को डिसाइड करने का वो होगा एविडेंस, वो टच स्टोन होगा। अब सवाल ये है कि हर सिस्टम जो है यूनिवर्सली वो अपना जो एक एविडेंस का वो लेवल है वो डिसाइड करता है। हमने इसको हाईएस्ट बार दी कि हमने इसको कॉमन लॉ के ऊपर लगाया हुआ है जो कि ब्रिटिश का सिस्टम है। लोग हम जो हैं जो नीचे हमारी जो लोकल रियलिटीज हैं वो बेसिकली सब नेशन कंट्री की हैं, इवोल्यूशन उसमें आया नहीं है। मैं मतलब मोटी की बात कर रहा हूँ जो कि मैंने बताने की कोशिश की है कि जैसे हमारे इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं, मे बी दे हैव डन लॉट ऑन दिस थिंग, मगर वी आर लैकिंग फार बिहाइंड। तो ब्रिंगिंग इट टू द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जैसे जैसे क्राइम या इस किस्म की चीजें वो बढ़ेंगी, तो ऑफ कोर्स हमें चाहिए कि टेक्नोलॉजी को मैक्सिमाइज करें, उसका यूज जो है to solve our problems. Thank you. यहाँ पे I would like to add more thing. एक और चीज from the judicial point of view, since अब मैं यहाँ पर हूँ और judiciary के बारे में बात हुई है, let me tell you some good things. हमने ये सारी बातें नहीं की। लेकिन जितनी की हैं, I am now bound to answer. And this is your permission. I would like to answer. Well, ladies and gentlemen, 2019 में पाकिस्तान में पहली बार मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट, मॉडल सिविल ट्रायल कोर्ट का कॉन्सेप्ट लॉन्च हो रहा है। 6 महीने में पहली बार खत्म होगा। ये जुडिशरी के नेशनल जुडिशरी पॉलिसी से ज्यादा सेक्शन 12A ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 वो कहता है एंड वी हैव टू फॉलो द स्टेट। नाउ हैविंग सेड दैट, जब मॉडल कोड्स आती हैं तो उसके बाद से फैसले तेज होने शुरू हो जाते हैं और ऐसे हुए हैं। 2019 में मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज पंजाब में सुहेल नासिर साहब ने अपनी कोर्ट में बैठ के 2 विटनेसेस एग्जामिन किए जबकि वो जेल में थे। सुहेल नासिर साहब ने 2017 में अपनी गाड़ी में बैठ के, क्योंकि आगे रेस्ट और कोर्ट नहीं पहुंच सकते थे, मोबाइल फोन के ऊपर, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, कि मोबाइल फोन में उन्होंने सुबह 8:30 से 9 का जो टाइम था उस टाइम पे 10 बेल ऑर्डर्स पे ऑर्डर किया। सो थिंग्स आर मूविंग, बट व्हाट वी नीड टू हैव इज द सेल्फ एंड द पॉलिटिकल विल। सेल्फ विल होगी तो इकबाल ने सही कहा था कि जरा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज से सागी। सो थिंग्स आर गुड एज वेल, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑल द बैड थिंग्स। आगे वी हैव अ क्वेश्चन। यस सर, ये आखिर के क्वेश्चन से पहले मैं एक बात करूंगा कि हम तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे थे जो क्राइम कमिट हो गया सर, बट वी आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड टू प्रिवेंशन साइड पे हम क्या कर रहे हैं। प्रिवेंशन साइड पे हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब ये गुर्बत जितनी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, लोगों की तनख्वाहें नहीं है, बेरोजगार नौजवान हर गली के नुक्कड़ पे आपको नजर आएंगे जो खड़े हुए हैं, इट इज ऑल टाइम बॉम्ब्स। सो इफ यू वांट टू प्रिवेंट क्राइम, प्रिवेंशन को अगर आप जोर नहीं देंगे
तो सिर्फ इस पे तो हम सारी चीजें नहीं कर सकते। सो वी हैव टू वर्क आउट बोथ दिस which is प्रिवेंशन के लिए मैंने कहा कि टॉयलेट जी which is ये एक पार्ट है। और एक और आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि कराची में एक रेप केस हुआ जिसमें 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ और उसकी डेड बॉडी जो है एक डस्टबिन से मिली। तो ये हमारे क्लिफ्टन का इलाका था और बहुत लोगों ने एहतजाज किया, गिजरी का इलाका है। वो केस हमारे पास आया, हमने उसको ट्रायल किया 3 मंथ्स में। उस बंदे को पकड़ा गया, वो अपनी फैमिली का ही कोई बंदा था उनका जो 25 साल का, उसको 2 दफा डेथ सेंटेंस कोर्ट ने ऑर्डर की। 3 महीने में वो ट्रायल मैंने खुद किया। तो वो जब हो गया सारा, उसके बाद कोई 5 साल 6-7 साल के बाद खोसा साहब जब चीफ जस्टिस बने, उन्होंने उसको इक्वेट कर दिया और उसमें जो उन्होंने एक शॉर्ट ऑर्डर लिखा इक्वेटल का, क्योंकि वो क्रिमिनल केसेस के हवाले से वो वन ऑफ द बेस्ट जज कहलाते हैं, लेकिन उनके जजमेंट, उनका जो उन्होंने फैसला दिया उसको इक्वेटल का, उसमें ये कहा कि एक मैजिस्ट्रेट ने जो उसका 164 का स्टेटमेंट दिया था, कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया था, तो उसने एक सवाल मैजिस्ट्रेट को करना था कि देखो अगर तुम ये बयान जो दे रहे हो इसके बाद तुम्हें जेल भेजेंगे, पुलिस के पास नहीं भेजेंगे। ये एक रिक्वायरमेंट होती है, which जज डिड नॉट राइट कि मैंने ये सवाल पूछा। ठीक है, अब ठीक है, उन्होंने उसको रिपोर्ट कर दिया कि ये सवाल नहीं किया गया था, लिहाजा he has made his statement under pressure, number 1। अब ये तो आपने एक्यूज कराई तो आपने दे दिया उसको, लेकिन what happened to the girl, the murder, nothing is mentioned in the order। इतने बड़े जज ने, इतना बड़ा चीफ जस्टिस, और उसने उस मैजिस्ट्रेट को जो है ना वो उसको फौरी तौर पे उसको वो जॉब से हटाना था या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी थी, वो ही नहीं हुई। सो these are the very sad affairs which we see।